आज का ऑब्जेक्टिव हमारा इलास्टिक बीनस्टॉक होगा, EBS. ओके, सो दिस इज नोन एज इलास्टिक बीनस्टॉक. एक्चुअली दिस इज़ नॉट टू डिफरेंट वर्ड्स, एक ही वर्ड है ये, इलास्टिक बीनस्टॉक. ठीक है, तो EBS नाम की दो चीज़ें अमेजोन में. एक तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, दैट इज़ द वॉल्यूम attached to your EC2 instances, right? And the second thing is Elastic Beanstalk. This basically is a platform as a service that allows you to host and run your applications. Okay. Now, traditionally, when we created any application, any web-based application or back-end application, to run the application, we needed servers. ठीक है? These servers needed operating system for the applications to run on. And most of the application these days, they are not simply dependent on operating system. Application also require a suitable environment to run on. ठीक है ना? So what we do with Elastic Beanstalk, Amazon provides us a method, ठीक है, that we can request for an environment. ठीक है, with Amazon's Elastic Beanstalk, what we can do, we can request for an environment that is already having a server with an operating system, middlewares, runtime, ठीक है, and these things are installed, maintained, managed by Amazon Web Services. We just develop our applications and put our applications on these platforms. ठीक है, so this is one of the most simplest tool in platform as service, and some developers actually like to go with this type of tool. But anyways, if you have a production website where you have a custom application, and the need of the application is very dynamic, ठीक है, and you don't want the platform to be maintained by Amazon, you want the platform to be maintained by you. You can take care of the runtime, you are going to take care of the middleware and all the other components of the operating system. Then you are going for EC2 instances. Okay, if you have something like DevOps जैसी चीज़ है अगर आपके पास, तो सवाल ही नहीं उठता आप ये चीज़ को यूज़ करने वाले हो. ये टूल पहली बात किसके लिए, ये वो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जिनके पास एप्लीकेशन डेवलपर्स है, ठीक है, और उनको न्यू एक टीम ऑपरेशंस इंजीनियर्स की नहीं चाहिए सर्वर एडमिनिस्टर करने की. तो बेसिकली वहाँ पे वो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर्स को एलिमिनेट करने के लिए लोग इस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, राइट. लेकिन एक्सपेंसिव है ये सर्विस. कंपैरेटिवली आपके लिए एक अफोर्डेबल मॉडल जो होगा EC2 होगा, इलास्टिक बीनस्टॉक नहीं होगा. इलास्टिक बीनस्टॉक में बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी है जो हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट. तो सब में पहली चीज़, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, मेरे पास ये एप्लीकेशन है and I want to launch this application. So this is an application, I want to launch it. So the hardware where the application is going to run on, so this is the hardware, this is with Amazon, ठीक है ना. On this hardware, the platform to run this application, the platform to run the application is already created. मतलब ये आपका हार्डवेयर लेयर हो गया, राइट. सो ये आपका हार्डवेयर हो गया, ठीक है. अब ये जो लेयर है ना, इसके अंदर आपका रन टाइम है, यहाँ ही पे आपका मिडलवेयर है. This runtime I need to check, select, right? Yes. Because how they will know what kind of application, I mean, what type of runtime is required That by will my be selected. application. Yes. That will be selected by That us. will be selected. By Yes. us. Yes. See, there are basically two runtimes. One is Apache and the other one is Internet Information Services. If you have a .NET based application, the Amazon is automatically going to select IIS, right? And if you have a Java based या तो PHP based, so they are going to use Apache over there. ठीक है. The middleware is all dependent on us, whether it is Java, Python or .NET or maybe it is. लैम्बडा के केस में हम लोग सिर्फ कोड देते हैं, राइट. हाँ, हम सिर्फ कोड देते हैं. यहाँ भी वैसे ही तो उतना ही सिमिलर है. जैसा लैम्बडा था ना, वहाँ पे एक स्क्रिप्ट था आपके पास, वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना था. यहाँ पे आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है, आपके पास एक वेब एप्लीकेशन है, राइट, या तो बैक एंड एप्लीकेशन है. दोनों में से कुछ भी हो सकता है. तो फ्रंट एंड या तो फिर एक वर्कर सर्वर पे रन होने वाला एक बैक एंड एप्लीकेशन, दोनों में से कुछ. एप्लीकेशन क्या नाम से देते हैं? डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूजुअली नहीं होगा ना, आप या तो फिर बैक एंड, मतलब आप सर्वर साइड एप्लीकेशन बोल रहे हो. हाँ, मतलब जैसे भी एक वेबसाइट है सोचो अमेजोन का. वेबसाइट नहीं, एप्लीकेशंस जैसे कुछ भी XYZ, जैसे
आपका ईडी क्या बोलते हैं उसको, जो ऑफिस के लिए बैंकिंग के लिए कोई एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल बैंक का एप्लीकेशन है या फिर हॉस्पिटल का एप्लीकेशन, स्टैंड-अलोन एप्लीकेशंस, so that हाँ, kind of दे application कैन can ऑल्सो रन ओवर, ठीक है ना। नहीं, लेकिन हम लोग जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, जैसे कि सोचो मैं अपने लैपटॉप पे ना आई इंस्टॉल थिंग्स लाइक VLC मीडिया प्लेयर या गूगल क्रोम या तो फिर सिम, दोज थिंग्स आर नॉट फॉर यर, ठीक है ना। दीज मशीन्स विल बी रनिंग द एप्लीकेशंस ऑल द टाइम, ठीक है। दीज एप्लीकेशन विल बी प्रोवाइडेड डेटा बाय द फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड विल बी प्रोवाइडिंग, मतलब एक वेब बेस्ड पूरा एक आपका वेबसाइट है ना, उसके कंपोनेंट्स होंगे, एक फ्रंट एंड होगा वहाँ पे, एक बैक एंड होगा, एक डेटाबेस होगा, तो उसमें वो जो फ्रंट एंड है आपका, फ्रंट एंड या तो बैक एंड, वो दोनों टाइप की चीज़ें यहाँ पे रह सकती हैं, राइट। और ये जो ब्लू वाला लेयर है, ये रन टाइम, मिडलवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सो बेसिकली ये आपका है ना प्लेटफॉर्म है, आप सिर्फ इसके ऊपर अपना एप्लीकेशन डेवलप करो। तो ये मैंने डेवलप किया हुआ एक एप्लीकेशन, लेट्स से, सो दिस इज़ माय एप्लीकेशन, तो ये मेरा एप्लीकेशन है। तो वंस यू डेवलप एन एप्लीकेशन, टेक योर एप्लीकेशन एंड पुट इट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, क्लियर, इतना सिंपल है ये। तो ये हार्डवेयर और आपका वो जो ब्लू कलर का लेयर है आपके प्लेटफॉर्म का लेयर है, ये पूरा की पूरा केयर करता है अमेजोन इसका। अभी सोचो आपके एप्लीकेशन को आप है ना न्यू फीचर्स ऐड कर रहे हो, you are adding new features into your application and these new features demand you to update this middleware, so you will just request Amazon to update that middleware. Now in the next maintenance window they are going to do it for you, समझ में है ना। उनका नेक्स्ट मेंटेनेंस विंडो अगर आपने कॉन्फ़िगर किया है एवरी वीकली अपडेट करना है, वीक में एक बार चेक करना है माइनर या मेजर अपडेट्स को, तो अकॉर्डिंगली वो अगले हफ्ते में वो जब भी नेक्स्ट वीकली मेंटेनेंस है शेड्यूल्ड है तब वो अपडेट होगा, ठीक है। और कभी कभी आपको प्लेटफॉर्म में जैसा कि जावा ने फॉर एग्जांपल रन टाइम JRE8 बना दिया, राइट, लेकिन शायद अमेजोन पे अभी तक का वो सपोर्ट नहीं मिले, तो आपको वो वेंडर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि वो कब रिलीज़ करता है सपोर्ट इस चीज़ का अपने प्लेटफॉर्म पे। तो बेसिकली ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें वो जो स्पीड चाहिए, कस्टमाइजेशन और चेंजेस ऑन डिमांड चाहिए, वो लोग इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा यूज़ नहीं करेंगे। इस प्लेटफॉर्म को यूज़ वही ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे जो मतलब चल जाएगा, उन्हें सिर्फ एक वेबसाइट होस्ट करनी है और ज़्यादा उनके लिए मतलब ये वेबसाइट रेगुलर बेसिस पे अपडेट भी नहीं होने वाली। तो अगर आपका ऐसा यूज़ केस है तो दिस इज़ गुड फॉर यू, राइट। बट एनी वे स्टिल दिस इज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन। मैं आपको तो पूरा इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूँ एग्जैक्टली कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग इनटू Amazon Web Services. If I click all services here now, in my all services you can see here the second last service is Elastic Beanstalk, ठीक है ना। So here is my Elastic Beanstalk. I am going to create a new application over here. तो न्यू एप्लीकेशन जो क्रिएट कर रहा हूँ मैं, दिस इज जस्ट अ कंटेनर, एक फोल्डर है सिर्फ, ठीक है। इस फोल्डर में आपको एनवायरनमेंट प्लेस करने पड़ते हैं। एनवायरनमेंट इंक्लूड सर्वर विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर। तो आई एम फर्स्ट गोइंग टू क्रिएट एन एप्लीकेशन एंड आई एम कॉलिंग इट माई न्यू एप्लीकेशन। सो दिस इज़ माई एप्लीकेशंस नेम। डिस्क्रिप्शन देना है दो, नहीं तो छोड़ दो, क्रिएट कर दो इसको। तो इट इज़ क्रिएटिंग दिस एप्लीकेशन एंड इट गॉट क्रिएटेड, खत्म हो गया, राइट। तो दिस इज़ अ फोल्डर। तो आप अपने प्रोजेक्ट वगैरह के नाम दोगे, यहाँ पे एप्लीकेशन को नाम क्या देंगे, आपका प्रोजेक्ट नेम देंगे। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके एनवायरनमेंट बनेंगे, राइट। तो आई एम गोइंग इनटू एक्शंस और यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट एनवायरनमेंट। वही सेम ऑप्शन यहाँ से भी एक्सेसिबल है, टू क्रिएट अ न्यू एनवायरनमेंट यू कैन क्लिक क्रिएट वन नाउ। So this is asking you for what type of environment you are going to create. If your application is going to be a front end system, front end अगर आपने application बनाया तो आप obviously web server environment select करोगे। लेकिन अगर आपका application back end में रन हो रहा है, ठीक है, तो आप worker environment choose करोगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपकी यूज़ केस के ऊपर। अगर आपके पास application is written in Java या तो Python, PHP या फिर हो सकता है Node, तो इन दैट केस वर्कर एनवायरनमेंट है। लेकिन अगर आपका जो वेबसाइट है उसका फ्रंट एंड अगर डेवलप्ड है PHP पे, यूजुअली फ्रंट एंड हम PHP में डेवलप नहीं करते, फ्रंट एंड हमारे HTML CSS के कोड्स होते हैं। इस पे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन नहीं चलेगा। कौन सा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन? स्टैंड अलोन भी फ्रंट एंड में चला सकते हैं, लेकिन बैक एंड में जो रहता है ना, तो आपके जो पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट 80 पोर्ट है ना, बिकॉज इन केस ऑफ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन यू विल हैव अ MSI, ठीक है,
इंस्टॉलेबल फाइल मिलेगा. तो Yes. once you install that file on your machine, you will get the application running. यहाँ तो ऐसा कुछ यहाँ वैसा नहीं होगा. ये जो आपका फ्रंट एंड है ना, ये वेब सर्वर, वेब एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन को अगर आपने कंपाइल किया और कंपाइल्ड एप्लीकेशन को अगर आपने बिल्ड करके यहाँ पे पुश किया तो वो रन होगा. ठीक है. अगर आपके पास MSI वगैरह टाइप के फाइल्स है तो ऑब्वियसली आपको वर्कर एनवायरनमेंट पे जाके उससे इंस्टॉल करके रन करना है. ठीक है. ओके. ये जो यहाँ पे क्या है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, या तो फिर एंगुलर में बने हुए वेबसाइट्स, वो आप ये वेब सर्वर एनवायरनमेंट में रखते हो. ठीक है. तो आई एम गोइंग टू पुट समथिंग इन माय वेब सर्वर एनवायरनमेंट ताकि मैं टेस्ट भी करूँ. इसके लिए मैं वेब सर्वर एनवायरनमेंट यूज़ कर रहा हूँ. क्लिक सिलेक्ट, और अभी यहाँ पे एनवायरनमेंट की डिटेल्स देना. अभी आपके एनवायरनमेंट में नाम पहले देना है. तो मैं इसको है ना न्यू ऐप-1 दे रहा हूँ. तो इस एनवायरनमेंट का नाम क्या है, न्यू ऐप-1. इसका डोमेन नेम, अभी देखो आपके डोमेन नेम में एशिया पैसिफिक साउथ 1 elasticbeanstalk.com हमेशा ऐड होने वाला है. तो मेरा डोमेन नेम यहाँ पे होगा लेट्स से app1-test. ठीक है. तो app1-test. और आपके यूज़र्स के लिए ईजी डोमेन नेम चूज़ करो. अगर आपके यूज़र्स है आपके बिजनेस के, अगर वो इस तरीके के नाम अगर आप दोगे ना, तो इसके लिए आपको DNS को इंक्लूड करना पड़ेगा. यहाँ पे एलियस कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे आपको, राइट. तो app1-test.asiapacificsouth1.elasticbeanstalk.com is going to be the name of my application, but this is a internet resolvable name. I have to check if anybody has taken this name. तो अगर सिर्फ app1 डाल के चेक करूँ ना, तो ऑफ कोर्स किसी ने तो भी ये नेम चूज़ किया होगा. चेक अवेलेबिलिटी, अच्छा है, अवेलेबल है ये, app1 इज़ अवेलेबल, किसी ने चूज़ नहीं किया. ठीक है ना. तो अगर मैं www टाइप करूँ ना, तो ऑफकोर्स ये किसी ने तो भी ऑलरेडी ये यूज़ किया, राइट. www1 अगर मैं चूज़ करूँ चेक अवेलेबिलिटी, तो ये अवेलेबल है. तो आपको ये देखना है कि कौन से डोमेन नेम आपके अवेलेबल है, कौन से नहीं है. ओके. तो देयर कैन नॉट बी 2 वेबसाइट्स विद द सेम डोमेन नेम, मतलब फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम. तो मैं इसको app1 दे रहा हूँ, इसको नाम. चेक अवेलेबिलिटी, इट्स देयर, अवेलेबल है, app1.asiapacific. नाउ चूजिंग द प्लेटफॉर्म, आई एम गोइंग टू चूज़ PHP, राइट. तो हियर आई हैव PHP. ओके. एंड आपके पास ये सारे ऑप्शंस है. अगर आपकी वेबसाइट इनमें से किसी चीज़ पे बनी है, आपका एप्लीकेशन डेवलप्ड है, आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो. आई एम गोइंग टू चूज़ PHP. ठीक है. एप्लीकेशन कोड, आई एम सेइंग सैम्पल एप्लीकेशन विल बी गुड फॉर मी एज ऑफ नाउ. ठीक है. आई एम नॉट गोइंग फॉर अ कस्टम एप्लीकेशन. फॉर मी सैम्पल एप्लीकेशन इज़ सफिशिएंट. थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, मैं एक आधा सादा सा एप्लीकेशन कंपाइल करके आपको प्रेजेंट करूंगा. ठीक है. तो अभी के लिए मेरा सैम्पल एप्लीकेशन ठीक है. कस्टम एप्लीकेशन थोड़ी देर में हम देखते हैं. तो यहाँ 3 चीज़ें ही थी. पहले तो आपके एनवायरनमेंट का नाम, ठीक है, और आपके वेबसाइट का नाम, राइट. दूसरी चीज़ आपका प्लेटफॉर्म था, और तीसरी चीज़ आपका एप्लीकेशन. अगर आपके पास एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है और वो S3 बकेट में है, तो यहाँ से उसको अपलोड कर सकते हो. S3 बकेट का पाथ मेंशन कर सकते हो. और अगर आपका एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में जार वार या तो फिर वो जिप फाइल के फॉर्म में, जार फाइल तो नहीं होंगी ऑब्वियसली, जार इज़ अ स्मॉल लाइब्रेरी, कस्टम लाइब्रेरी, राइट. अगर आपकी वार फाइल है या तो जिप फाइल है, तो यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो. वो हम बाद में कर लेंगे थोड़ी देर में अपलोड. फिलहाल मैं कॉन्फ़िगर मोर ऑप्शंस में भी नहीं जाता हूँ, ये थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ. एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट हिटिंग क्रिएट एनवायरनमेंट. सो दिस विल क्रिएट माई एनवायरनमेंट फॉर मी. ओके. अब ये एनवायरनमेंट बनने के लिए एटलीस्ट 8 to 10 मिनट्स जाएंगे हमारे. ओके. ये इतना क्विक एंड फास्ट प्रोसेस नहीं. अच्छा, मीनवाइल ये एनवायरनमेंट बनता है ना, हम क्या करेंगे, हमारे कस्टम एप्लीकेशन का कोड लिख देंगे, राइट. तो राइटिंग अ कस्टम एप्लीकेशन, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो इनटू वन ऑफ माय डायरेक्टरीज. लेट्स से आई एम गोइंग इनटू डॉक्यूमेंट्स, एंड यहाँ पे तो नहीं है. प्रोजेक्ट, अभी इस डायरेक्टरी में मुझे एक एप्लीकेशन, एक index.php फाइल या तो index.html फाइल यहाँ पे रखनी है. प्रोसेस बहुत सिंपल है. मैं एक नोटपैड स्टार्ट करूँगा, टेक्स्ट एडिटर.
और ठीक है ना. सो ये सिंपल सा एक HTML कोड लिख दिया मैंने, राइट. सो दिस इज़ माई एप्लीकेशन वर्जन 1 शुड बी डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ अस एंड विल सेव दिस इन आर डॉक्यूमेंट्स. नहीं, डाउनलोड्स में था ना, प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर था यहाँ पे, एंड हियर विल नेम दिस index.html. so this is my file. Click save. if I minimize this, now I can see index.html है ना. तो ये HTML फाइल को आप अभी पैकेज करना है आपको. राइट क्लिक करो सिंपली इसको, ओके, और कंप्रेस कर दो यहीं पे. फाइल का नाम पूछ रहा है तो वर्जन 1 और इसका नाम दिया .zip फाइल. .var, .tar, .7z ये नहीं चलेगा. Amazon कैन जिप और अनजिप, ठीक है ना. तो जिप फाइल ही बनानी है आपको. जिप फाइल इज़ अ सिंपल आर्काइवल, ठीक है ना. सो Amazon उसको कंप्रेस्ड फॉर्म को डीकम्प्रेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ आर्काइव करना है आपको, और सिंपली आपको क्रिएट कर देना है इसका आर्काइव. तो v1.zip यहाँ पे बन गया. ये हम थोड़ी देर में Amazon में अपलोड करेंगे और चेक करेंगे हमारा एप्लीकेशन होस्टेड है या नहीं है, राइट. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू गो हियर, here, back here, and my application has been created. सारा environment बन गया. and if I click over here ना, open link in new tab, तो this is the sample website which is running. तो देखो अभी ये ना app1.asiapacificsouth1elasticbeanstalk.com इस लिंक पे Amazon का ये सैम्पल एप्लीकेशन है जो रन हो रहा है. अभी ये वेबसाइट भी है ना, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती है. व्हाट नेक्स्ट, AWS इलास्टिक बीनस्टॉक का ओवरव्यू यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है. और फिर आप डिप्लॉइंग AWS इलास्टिक बीनस्टॉक एप्लीकेशन इन PHP यूजिंग EB एंड Git. तो Git के कमांड्स वगैरह सब यहाँ से मिल जाएंगे आपको, राइट. ठीक है. और RDS को कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है, विद दैट PHP एप्लीकेशन, वो भी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना. तो connect.db नाम की कोई फाइल होंगी, या तो आपके डेवलपर ने कोई ना कोई कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन किया होगा, ठीक है ना. तो ODBC ड्राइवर्स वगैरह रहते हैं, वो भी यहाँ पे सब पहले से प्री अवेलेबल मिल जाएंगे. उसके रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है. और अगर आपके पास डेवलपर्स है, डेवलपर्स नो हाउ टू कनेक्ट द एप्लीकेशन इनटू अ डेटाबेस, ठीक है. तो यू विल हैव नो प्रॉब्लम. RDS का सिर्फ आपको है ना, हमने लास्ट वीक देखा था एंड पॉइंट. आपको एंड पॉइंट लेना है, यहाँ पे पेस्ट करना है RDS का एंड पॉइंट आपके एप्लीकेशन कोड के अंदर. उसका जो मास्टर यूज़र है उसका यूज़र क्रेडेंशियल्स भी आपको डालना है और पोर्ट नंबर डालना है. 4 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. दैट्स इट. क्लियर. मैं आपको बाद में एक फ़ाइल बताता हूँ जिसके अंदर टेम्पलेट के अंदर वहाँ पे है MySQL का कॉन्फ़िगरेशन. ओके. सो वंस दिस इज़ डन, अभी हमारा एप्लीकेशन का चांस, लाइक आई एम गोइंग टू अपलोड एंड डिप्लॉय माई एप्लीकेशन विच आई हैव कॉन्फ़िगर्ड नाउ. तो आई एम गोइंग टू चूज़ अ फाइल. ओके, दिस फाइल इज़ इन डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, प्रोजेक्ट के फोल्डर में, और यहाँ पे डाउनलोड्स प्रोजेक्ट, हियर इज़ द फाइल v1.zip, ठीक है ना. आई एम गोइंग टू ओपन दिस फाइल and this is my version 1. deploy. Now this was a very tiny file, it hardly took any time to get uploaded, right. And once it gets uploaded it will be available as my new website, ठीक है. तो लास्ट टाइम मैंने इस हाइपर लिंक को क्लिक किया था, app1.asiapacific-south1, तो मेरा जो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है वो दिख रहा था. तो ये जो एप्लीकेशन अपलोड हो जाएगा, जी, so what are the machine configurations and what वो किस बेसिस पे डिसाइड होगा, या हम देखते ना. एक्चुअली यहाँ पे ना कॉन्फ़िगरेशन नाम का ऑप्शन है. अभी हमारे लिए बाय डिफ़ॉल्ट T2 माइक्रो इंस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है. लेकिन अगर हमारे नंबर ऑफ़ यूज़र्स ज़्यादा होंगे ना, कैपेसिटी ज़्यादा होंगी, तो हम मशीन चेंज कर सकते हैं साइज़. ठीक है. सो मेरा जो रनिंग वर्जन है v1 है, राइट. नाउ इफ़ आई अगेन क्लिक दिस हाइपर लिंक, तो हियर इज़ माई एप्लीकेशन विच आई होस्टेड, ठीक है. सो दिस इज़ माई एप्लीकेशन वर्जन 1. क्लियर.
सो समझ में आया ना एप्लीकेशन होस्ट करना कितना ईजी हो गया. देखो पहले होता ये था कि एक टीम ऑफ डेवलपर होती थी. इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपली अपने एप्लीकेशंस डेवलप करनी थी. ठीक है. फिर एक ऑपरेशंस टीम थी. सर्वर और उसके ऊपर वो एप्लीकेशन को सपोर्टिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का काम ये सर्वर की टीम करती थी. अगर एप्लीकेशन डेवलपर्स ने कोई न्यू फीचर ऐड किया अपने एप्लीकेशन के लिए तो इस न्यू फीचर को अपने प्रोडक्शन के ऊपर पैच करने का काम वो सर्वर सपोर्ट की टीम करती थी. ठीक है. अच्छा टेस्टिंग डिपार्टमेंट को हमने अभी इस पिक्चर में नहीं लाया क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग का काम नहीं है. अमेजोन अज्यूम कर रहा है कि आपने एप्लीकेशन डेवलप और टेस्ट दोनों कर दिया आपका, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ला के यहाँ पे होस्ट कर दो. तो वो जो अंडरलाइन नेटवर्क प्रोवाइड करने का काम है और वो जो सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम है इंक्लूडिंग द प्लेटफॉर्म टू रन द एप्लीकेशन दैट इज टेकन केयर बाय अमेजोन. वो यहाँ पे टेस्टिंग भी करता है. अगर आप वो जिप फाइल है ना ये हाँ नहीं HTML वो वाला, एक बेसिक टेस्ट करता है लेकिन फिर भी जस्ट इमेजिन करिए आपका एप्लीकेशन इज वर्किंग फाइन. ठीक है. बट देर इज अ सिक्योरिटी vulnerability in your application that will not be tested. okay. Will your application run or not run? That is the thing that Amazon is going to do. But if there is one functionality that is missing या that is हो सकता है आपने एप्लीकेशन को जब बिल्ड किया ठीक है टू प्रोवाइड इनटू Amazon तो वो जो लॉगिन बटन था ना उसके रिलेटेड कोड है ना वहाँ पे इंटीग्रेट नहीं हुआ आपके एप्लीकेशन में. ठीक है. तो जब यूज़र लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे हैं इट इज़ टेकिंग टू अ डेड एंड, कहीं नहीं जा रहा है सिस्टम. समझ में. तो ये चीज़ की टेस्टिंग Amazon नहीं करेगा कि एप्लीकेशन कंप्लीट है हाँ हाइपर लिंक पे क्लिक करना. वो तो मैनुअल टेस्टिंग में ही होगा ना आपका. राइट. So simply Amazon is going to test whether your application can be accessed or not. अभी मैं एप्लीकेशन में ना इश्यूज भी क्रिएट करके बताता हूँ. Amazon क्या कर सकता है. राइट. Amazon आपको है ना कुछ एरर्स प्रोवाइड करेगा और वो एरर को थोड़ा बहुत रीड करना जितना मेरे को समझता है मैं आपको उतना बताता हूँ. ठीक है. सो इन सिंपल सेंस पहले होता था कि हमें एक नेटवर्क टीम मेंटेन करनी पड़ती थी. ये नेटवर्क टीम आपका नेटवर्क ही नहीं DNS रजिस्ट्रेशन, नेम रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेट और फाइनली वो लोग आपके ना लोड बैलेंसर्स को भी केयर करते थे. ठीक है. तो वो लोग सिर्फ नेटवर्किंग इनपुट आउटपुट पर जो नेटवर्क जो कनेक्टिविटी थी आपके एप्लीकेशन के लिए उतने ही नहीं आपके लिए नेम रेजोल्यूशन और आपके लिए लोड बैलेंसिंग भी प्रोवाइड कर रहे थे वो लोग. ठीक है. नेटवर्क लोड बैलेंसिंग एज वेल एज सर्वर लोड बैलेंसिंग. सर्वर टीम थी मल्टीपल सर्वर्स जो क्लस्टर था आपका उसका एनवायरनमेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब चीज़ों को मेंटेन अप टू डेट और सिक्योर रखने का काम या पोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करके रखने का काम ये सर्वर टीम कर रही थी आपकी. राइट. और फाइनली एक डेवलपमेंट टीम थी. डेवलपमेंट टीम एप्लीकेशन को डेवलप कर रही थी और वहाँ पे टेस्टिंग टीम भी थी उनके साथ जो रेगुलरली एप्लीकेशन के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग या यूनिट टेस्टिंग वो कर रहे थे. राइट. ठीक है. सो अभी हुआ क्या है Amazon ने चीज़ों को कम्प्लीटली चेंज कर दिया. अभी आज आपके पास कौन से टीम्स होंगे. सिर्फ 2 टीम होंगे. एक डेवलपर्स टीम और एक टेस्टिंग टीम. अभी टेस्टिंग में भी ऑटोमेटेड टेस्टिंग आ गई है बहुत हद तक. तो यू विल ओनली हैव अ डेवलपर टीम एंड मे बी 1 या 2 टेस्ट इंजीनियर्स. ठीक है. सो बेसिकली वंस योर एप्लीकेशन हैज़ बीन टेस्टेड एंड अप्रूव्ड ठीक है इट कैन बी जस्ट टेकन टू इलास्टिक बीनस्टॉक एंड रिलीज्ड. खत्म हो गया. तो यू डोंट नीड ऑपरेशंस टीम, यू डोंट नीड सर्वर्स, यू डोंट नीड नेटवर्क. एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय Amazon. ठीक है. सो ये मेरा एप्लीकेशन रिलीज़ हो गया. इट्स वर्किंग फाइन. ठीक है. अभी इसमें जब भी एप्लीकेशन को मैं चेंज करता हूँ तो एक न्यू कोड जो आएगा अपलोड करना है यहाँ पे. और अभी मैं आपको ना थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ. इफ़ आई क्लिक ऑन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एनवायरनमेंट तो यहाँ पे आपको है ना सर्वर्स, इंस्टेंसेस, कैपेसिटी, लोड बैलेंसर्स सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी. अभी जो मेरा सॉफ्टवेयर था और ये इंस्टेंस था. अभी इंस्टेंस जैसा आप देख रहे हो T2 माइक्रो इंस्टेंस. If I want to modify, I can hit this modify button, and instead of T2 micro, I can select a larger instance as well. वही तो एक ही सेलेक्ट कर सकते हो क्या? जी. If you have one server ना. तो अगर आप load balancer कर रहे हो, if you are going for multiple servers ना. नहीं अभी समझो आपने यहाँ पे T2 माइक्रो सेलेक्ट किया है. ठीक है. जी हाँ. जब आप डैशबोर्ड में जाके कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, you will get an option only for a T2 micro. नहीं. When I am going to create an application, if I go to my new application और क्रिएट न्यू एनवायरनमेंट तो देखो ये हमारे एप्लीकेशन था. ऑल एप्लीकेशंस में माई न्यू एप्लीकेशन दिख रहा है. उसके अंदर एक एनवायरनमेंट था. ठीक है. जब मैं एक्शन में जाके एक नया एनवायरनमेंट वापस से बनाऊँ ना और सिलेक्ट करूँ वेब सर्वर सिलेक्ट तो यहाँ पे नीचे एक बटन है कॉन्फ़िगर मोर ऑप्शन. पहले ये एप्लीकेशन का कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं रूबी या तो आई डोंट हैव सच एप्लीकेशन. सिर्फ मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ. ठीक है. तो हो गया ये कॉन्फ़िगर मोर ऑप्शंस. यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है वो कि
आपकी सॉफ्टवेयर सेटिंग, आपकी इंस्टेंस सेटिंग, आपकी कैपेसिटी प्लानिंग, ये यहाँ क्या पे मैं होगी? इंस्टेंस मॉडिफाई Yeah. कर सकता हूँ। यस, लोड बैलेंसर्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी मेरे पास लोड बैलेंसर नहीं है, तो बेसिकली इट इज़ नॉट सेइंग कि यू कैन कॉन्फ़िगर अ लोड बैलेंसर, यू कैन सेलेक्ट अ लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर पहले आपको बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिस्ट होगा, तो उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तब जाके आपकी कैपेसिटी में, अभी ये सिंगल इंस्टेंस है, इसको मॉडिफाई करके मल्टी इंस्टेंस भी कर सकते हो। तो इन दैट केस यू विल हैव 2 या 3 या 4 इंस्टेंस डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, एंड इफ वन इंस्टेंस गोज डाउन स्टिल यू हैव रिडंडेंसी। तो वही हाई अवेलेबिलिटी जो आप ऑन प्रोडक्शन कर रहे थे, क्लस्टर्स बना रहे थे, लोड बैलेंसर्स रख रहे थे, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। और इंस्टेंस का साइज़ भी आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको इंस्टेंस कितने स्ट्रॉन्ग चाहिए, ओके। ऑटो स्केलिंग वगैरह भी यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन। अच्छा, यहाँ लेकिन एक ऑप्शन है रोलिंग अपडेट एंड डिप्लॉयमेंट्स, ठीक है। रोलिंग अपडेट का मीनिंग क्या है? अभी जब एप्लीकेशन के लिए आपने न्यू अपडेट बनाया, ठीक है, आपकी वेबसाइट के लिए आपने नया एक अपडेटेड वर्जन बना, तो वो रोलिंग अपडेट में क्या होता है, पहले एक सर्वर के ऊपर वो वेबसाइट होस्ट की जाएगी जो न्यू वर्जन है वेबसाइट का, ठीक है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे दूसरे, तीसरे, चौथे सर्वर पे जाएगी। ये नॉर्मली जब आप डॉकर यूज़ करने वाले हो ना, तब आप यूज़ करोगे। डॉकर के अंदर जब अपडेट होता है आपका इमेज, अंडरलाइंग इमेज, वहाँ पे कंटेनर बनाने के पहले इमेज होनी ज़रूरी होती है डॉकर की दुनिया में, राइट। एंड दैट इमेज इज़ योर एप्लीकेशन। तो जब आपका इमेज आप अपडेट करते हो, एक न्यू और हायर वर्जन ऑफ इमेज बना देते हो, तब इन दैट केस आप रोलिंग अपडेट करोगे। आप नहीं चाहोगे कि पूरा की पूरा इन्वायरमेंट आपका डाउन हो, आपका एप्लीकेशन आपके एंड यूजर्स से डिस्कनेक्ट हो जाए एंड यू शुड फेस अ डाउन टाइम, वैसा नहीं होगा। आपका एक कंटेनर है ना सर्वर 1 के ऊपर, वो डिलीट हो जाएगा, न्यू इमेज के ऊपर एक न्यू कंटेनर बेस होगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे जो पुराने कंटेनर्स है वो निकाले जाएंगे और न्यू वर्जन ऑफ कंटेनर्स आएंगे। इसको रोलिंग अपडेट बोलते हैं। एक साथ है ना 10 की 10 कंटेनर्स को आप डिलीट नहीं करते हो और 10 नए कंटेनर लॉन्च नहीं करते हो। 10 में से एक कंटेनर निकाल दिया, 9 कंटेनर पुराना एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, एक कंटेनर न्यू वर्जन रन कर रहा है, ठीक है, ओके। जैसे ही उसको पूरी ट्रैफिक मिल गई, उसको जितनी मिलनी थी, तो दूसरे कंटेनर को निकाल दिया हमने, फिर उसके जगह पे न्यू कंटेनर बना दिया, और एक के बाद एक को निकालते जाते हैं। तो इससे एप्लीकेशन का आउटेज नहीं समझ में आता, ठीक है, और आपका एप्लीकेशन का वर्जन चेंज होते जा रहा है, राइट। सो एनीवे, ये बेसिकली आप इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैं कैंसिल कर रहा हूँ इसको, आई एम जस्ट गोइंग टू कैंसिल आउट ऑफ हियर। तो मैं अपने एप्लीकेशन में जाता हूँ और यहाँ पे कॉन्फ़िगर ऑप्शन था जहाँ से आप सब कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अभी मेरे पास एक थोड़ा सा है ना हाई एंड एप्लीकेशन है। इफ़ आई लुक हियर ना, तो लारावेल blog.zip का एप्लीकेशन है मेरे पास ये, ठीक है। अभी इस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो ये PHP बेस्ड एप्लीकेशन है और index.php वाली फाइल पब्लिक वाले फोल्डर में होती है, ठीक है। तो यूजुअली पब्लिक नाम का एक फ़ोल्डर होता है आपके एप्लीकेशंस में, जो डेवलपर्स बनाते हैं ये फ़ोल्डर, और इस पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर आपका है ना index.php है। अब ये डेवलपर मैन्युअली नहीं क्रिएट करते। जब डेवलपर्स कोई फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए, तो अपने एप्लीकेशन लिखते हैं, वो फ्रेमवर्क उनके लिए ये स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्टरीज डेवलप करता है, ठीक है ना, क्रिएट करता है डिपेंडिंग ऑन द स्टैंडर्ड्स यूज्ड इन द फ्रेमवर्क, ठीक है। सो मेरी जो index.php की फ़ाइल है वो यहाँ पे है इनसाइड पब्लिक डायरेक्टरी, ठीक है। और इस एप्लीकेशन को पूरा प्रॉपरली पैकेज किया है ये फाइल में, लारावेल blog.zip, ठीक है। अभी इस एप्लीकेशन के अंदर एक और एक डायरेक्टरी है, ठीक है, जो यहाँ पे वेंडर को डिफाइन करती है, और वेंडर के अंदर ब्लॉग में जाऊँ और कॉन्फ़िग database.php एक फ़ाइल है। अगर इस फाइल में देखोगे ना आप, तो यहाँ पे आप अगर MySQL यूज़ कर रहे हो, तो डेटाबेस का इंस्टेंस आईडी यहाँ पे देना है आपको, यूज़र नेम यहाँ पे देना है, पासवर्ड यहाँ पे देना है, राइट। सॉकेट के डिटेल्स अगर कोई है तो मेंशन करने हैं, तो हियर इज़ द इंफॉर्मेशन। पोर्ट नंबर यहाँ पे देना है, राइट, क्लियर। तो बेसिकली ये आपको है ना ईयरली फाइल कहाँ पे मिलती है, इफ़ आई मिनिमाइज दिस, तो यू विल फाइंड दिस फाइल इनसाइड योर एप्लीकेशंस कॉन्फ़िग डायरेक्टरी database.php। समझ में आया ना। इस फाइल के अंदर आपके डेटाबेस कनेक्शंस होंगे, तो आपने RDS का डेटाबेस बनाने के बाद RDS डेटाबेस आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा, आप अपने एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं यहीं से, ओके। सो योर एप्लीकेशन विल बी गोइंग ऑन एंड एक्सेसिंग योर डेटाबेस
एज वेल एज द एप्लीकेशन हैज़ द फ्रंट एंड एज वेल. अगर आपके पास बैक एंड है तो फ्रंट एंड को और बैक एंड को इंटरकनेक्ट करते हो आप, तो बैक एंड सर्वर की डिटेल्स देते हो यहाँ पे, राइट. और बैक एंड सर्वर के अंदर ये मिलेंगे आपको ये फाइल database.php, जिसको बैक एंड को आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट करोगे. ओके. सो एनीवे, ये सब करने का काम आपके डेवलपर्स करेंगे. दिस इज़ नॉट समथिंग विच यू विल डू. यू विल जस्ट प्रोवाइड देम दीज वैल्यूज लाइक डेटाबेस का एंड पॉइंट, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड द पोर्ट नंबर. आप ये 4 वैल्यूज़ उनको प्रोवाइड करोगे और वो एप्लीकेशन में वो चारों वैल्यूज़ यूज़ कर लेंगे वो लोग. ठीक है. अभी फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट फोल्डर में से ये laravel block.zip फाइल को है ना मैं ऐड करूँगा इन अमेज़ॉन. अभी ये फाइल का साइज़ 9.2 MB है, तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा अपलोड होने में टाइम लगेगा कंपेयर टू प्रीवियस एप्लीकेशन. तो अपलोड एंड डिप्लॉय. ओके, आई कैन जस्ट गो हियर, चूज द फाइल, एंड if I go to documents, downloads, project, and here I have laravel block.zip open, and then this is ठीक है, and then deploy. So now it is uploading. या नीचे दिख रहा है आपको progress. Okay, तो depending on the size of the application it is going to eat your time. ठीक है. अभी आप स्विच भी कर सकते हो. एक बार ये एप्लीकेशन रन हो गया ना, अभी पहले तो एरर देगा ये, क्योंकि हमारी फाइल जो है index.php वो कौन से डायरेक्टरी में, पब्लिक वाले में. सो दिस थिंग इज गोइंग टू गिव अस एरर. ठीक है. अगर मैं एक्सेस करने जाऊँ अपने एप्लीकेशन को, इफ़ आई जस्ट क्लिक ओवर हियर, आ गया. दिस इज़ नॉट वर्किंग, इट इज़ गिविंग एरर. तो इफ़ आई वांट टू मेक दिस थिंग वर्क ना, अभी थोड़ी देर में एक्चुअली ये जो ग्रीन कलर का लेबल है ना, ये भी रेड में ट्रांजिशन होगा. ठीक है. अभी तक का वो खुद ने इलास्टिक बीनस्टॉक ने टेस्ट नहीं किया इस एप्लीकेशन को, बैक एंड में चेक कर रहा है, आर ऑल द कंपोनेंट्स वर्किंग. ठीक है. अभी तक का तो हेल्दी बता रहा है, और अगर कंट्रोल F5 करूँ तो भी शायद हेल्दी ही बताएगा. हेल्दी बता रहा है थोड़ी देर में, लेकिन ये एरर देता है, यूजुअली ये देता है एरर. बट एनीवे, इफ़ आई वांट टू फिक्स दिस प्रॉब्लम कि ये जो वेबसाइट है नहीं दिख रही है मेरे को, तो देर इज़ वन वे. आई कैन गो इन टू कन्फिग्रेशन इन सॉफ्टवेयर सेटिंग्स. ठीक है ना. हियर आई कैन क्लिक मॉडिफाई बटन, एंड व्हेन आई गो इन टू मॉडिफाई बटन, तो डॉक्यूमेंट रूट मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि जो रूट फाइल है, ठीक है, जो आपकी एप्लीकेशन को रन करने वाली है, वो कहाँ पे है. तो वो मेरे एक्सट्रैक्टेड डेटा के पब्लिक वाले फोल्डर में यहाँ पे मेंशन्ड है. उन्होंने भी खुद ने दिया है /public. तो यूजुअली ये फाइल /public फोल्डर में होती है. इस फाइल का नाम क्या है, index.php. तो द सिस्टम नोज द फाइल नेम इज index.php. यू आर नॉट मेंशनिंग द फाइल नेम, आप सिर्फ /public देना. तो जब आपका वो जो आर्काइव्ड जो डेटा है, जिप फाइल जो है, जब वो एक्सट्रैक्ट होती है, एक्सट्रैक्शन के बाद उस फाइल के अंदर एक फोल्डर है पब्लिक नाम का. तो इसके लिए हम डायरेक्टली रूट पार्टीशन दे रहे हैं आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग. So wherever it gets extracted, we don't care, but in it is a public folder, and in the public folder is this file. Okay, index.php. Once done, बाकी के सेटिंग देखो, ये जो भी सेटिंग्स है, अगर आपने कोई कंप्रेशन यूज़ किया है तो आप वो कंप्रेशन मेथड्स यहाँ पे ट्रू फॉल्स एनेबल कर सकते हो. ठीक है. अगर आपकी फाइल जो थी वो कंप्रेस थी किसी टेक्निक से, किसी एल्गोरिथम से, तो यहाँ पे कंप्रेशन डिकम्प्रेशन वो एनेबल कर सकते हो. सो एनीवे, मैं नहीं जानता हूँ बाकी के सेटिंग्स क्या है. मैं सिंपली इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू डू अप्लाई. द मोमेंट आई क्लिक अप्लाई, इट इज़ गोइंग टू स्पिन अगेन, सेव द चेंजेस, एंड नाउ वी विल बी एबल टू सी आवर एप्लीकेशन. ठीक है. अगर आप इंटरनेट से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, इंटरनेट पे रेडी टू यूज़ जिप फाइल्स बहुत सारी मिल जाएंगी, PHP वगैरह की, राइट. तो अगर आपके पास ऐसा इंटरनेट से पुल्ड कोई जिप फाइल है, तो जब वहाँ पे यहाँ पे होस्ट करोगे ना, तो चेक करो जिप फाइल को पहले अनजिप करके अपने मशीन पे भी चेक करो कि कौन से फोल्डर के अंदर वो index.php, index.html, वो जो फाइल्स कौन से फोल्डर में, वो यहाँ पे मेंशन करना. नॉर्मली वो पब्लिक फोल्डर में होता है. ठीक है ना. ठीक है. सो दिस इज़ डन. इफ़ आई ओपन दिस in a new tab, here is my website. ठीक है. सो दिस Laravel एप्लीकेशन का जो पेज डेवलप किया गया था, ये वो पेज है. ठीक है. सो ये तो एक चीज़ हो गई, ये समझ में आया ना.
अभी मेरे को एप्लीकेशन को अपडेट करना है, ठीक है, एक न्यू वर्जन ऑफ एप्लीकेशन मैंने डेवलप किया है, वो मुझे अपडेट करना है। तो एक तो तरीका है अपलोड एंड डिप्लॉय, जो आपका न्यू अपडेटेड एप्लीकेशन है उसको डिप्लॉय कर दो यहीं से, ठीक है, एकदम सिंपल है प्रोसेस। हियर यू कैन क्लिक अपलोड एंड डिप्लॉय एंड अपलोड अ न्यू वर्जन ऑफ योर एप्लीकेशन। और व्हाट यू कैन डू इफ़ यू डोंट वांट टू पुट अ डाउन टाइम, जैसे कि अपलोड एंड डिप्लॉय में डाउन टाइम इन्वॉल्व होता है, ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हो डाउन टाइम हो तो एक्शंस पे क्लिक करो और आप क्लोन करो अपने एनवायरनमेंट का, तो यहाँ से आप इसकी एक और एक आइडेंटिकल कॉपी बना सकते हो, ठीक है। तो इसी एनवायरनमेंट का हम क्लोन क्रिएट करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ न्यू ऐप 1 या 2 मैं इसको नाम दे रहा हूँ क्लोन, ठीक है, और एनवायरनमेंट का भी नाम दिया क्लोन 1, और ये है क्लोन 1। चेक अवेलेबिलिटी, इज़ द नेम अवेलेबल है ये, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, सर्वर का साइज, सॉफ्टवेयर सेटिंग्स, एवरीथिंग विल बी टेकन फ्रॉम दैट फर्स्ट एप्लीकेशन एंड क्लिक क्लोन। तो यहाँ पे एक आइडेंटिकल एनवायरनमेंट बन जाता है जिसकी हाइपरलिंक डिफरेंट है कंपेयर टू द हाइपरलिंक विच यू आर यूजिंग इन दी अदर एप्लीकेशन, राइट। योर यूजर्स आर स्टिल कनेक्टेड टू द प्राइमरी एप्लीकेशन, और जो आपकी एक्सपेरिमेंट करना है ना, आप ये क्लोन पे करो। जो आपको एप्लीकेशन को पैच करना है, जो भी आपको वहाँ पे अपडेट करना है, तो आप कहाँ पे करोगे? क्लोन पे। ये डमी टेस्ट एनवायरनमेंट बन गया आपके लिए, राइट। सो विल वेट सम टाइम, 4-5 मिनट लेंगे इसके लिए भी कंप्लीशन फिर से प्रोडक्शन में लाने के लिए क्लोन को सिर्फ जो URL है ना, जो उनके जो वेबसाइट एड्रेस है वो स्वैप कर देने का बस। वेबसाइट एड्रेस इतना इमीडिएटली स्वैप करना 1 सेकंड में हो जाता है। यहाँ पे होता है ना, मैं बताता हूँ। इधर हो जाएगा, बट एट कस्टमर क्लाइंट एंड से तो वो दैट विल वेरी डिफिकल्ट। ऑन प्रेमाइसेस बहुत मुश्किल होता है। ऑन प्रेमाइसेस करना है ना, रिडायरेक्शंस वगैरह, DNS के रिकॉर्ड्स, वो तो दैट ऑल आर टेक्निकल स्टफ्स। बट अभी समझो टुडेस गूगल का बात करते हैं, तो व्हाट आई नो इज www.google.com इज द URL ऑफ गूगल, ठीक है। कल को आप बोलते हो कि google.c.com कर दो, नहीं वैसा नहीं होगा, वो सेम google.com ही होगा, सिर्फ वो उठा के हमने नए सर्वर पे लगा दिया। अभी देखो, ये क्लोन की मशीन के ऊपर आपने पैचेस वगैरह किए, सब इंस्टॉल किया, सब टेस्ट कर लिया, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन ना। ओके, तो google.com इधर लगा बस दो। वो लगा दो इधर उठा के। और वो जो दूसरा सर्वर था जो अभी तक का प्राइमरी फंक्शन कर रहा था, वो अभी हो गया ना स्टैंड बाय, निकाल दो उसको। अच्छा, वो वैसे भी है ना, वो भी अवेलेबल। अगर ये प्राइमरी सर्वर अभी जो बना हुआ है क्लोन, अभी इसमें जिस क्लोन को अभी आपने प्रमोट किया एज अ प्राइमरी सर्वर, राइट, जस्ट बाय टेकिंग दैट URL एंड पुटिंग इट ओवर हियर, ठीक है। अगर इसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स फिगर आउट होते हैं, वापस से रिवर्ट हो सकता है ना। क्लोन क्रिएट करते टाइम वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने का ऑप्शन नहीं देता? नहीं, वंस द क्लोन इज क्रिएटेड बाद में भी चेंज कर सकते हैं। वैसे भी ये स्टैंड अलोन सिस्टम है, ठीक है। ये क्लोन बन चुका है। इफ़ आई क्लिक ऑन दिस क्लोन्स वेबसाइट ना, ये हमारी वही वेबसाइट प्रेजेंट कर रहा है। अभी यहाँ पे ना मैं न्यू एप्लीकेशन अपलोड कर रहा हूँ, तो अपलोड एंड डिप्लॉय, आई एम गोइंग टू चूज़ अ फाइल। अभी मेरा जो एक्चुअल प्रोडक्शन एप्लीकेशन है ना, सो इट इज़ इन माई डाउनलोड्स compressed। कुछ भी कर सकते, इवन दो HTML फाइल भी दे सकते, क्या प्रॉब्लम? चलेगा, ठीक है, HTML फाइल दे देता हूँ मैं। सो मेरा जो एप्लीकेशन होगा, मुझे अपडेट्स दिखाना है। यस, सो दिस इज द HTML फाइल, index.html। नहीं .zip फाइल देना, हाँ। राइट। तो चलो Laravel 2 इसका वर्जन लेवल ऑटोमेटिकली उसने चूज़ किया, वही रहने देता हूँ, डिप्लॉय। अभी मीनवाइल देखो ना, जब ये चलता रहता है ना, अगर आप ये वेबसाइट को एक्सेस करोगे नॉट फाउंड, तो मतलब जब आप अपने एप्लीकेशन को यहाँ से अपडेट कर रहे हो ना, वहाँ पे डाउन टाइम होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी एप्लीकेशन बना दिया ना, इट्स वर्किंग फाइन, उसका क्लोन बनाएंगे हमेशा। क्लोन के अंदर जाके, हाँ, पाथ index.html का पाथ चेंज करना पड़ेगा। PHP है उधर।
हाँ नहीं, वहाँ पे तो PHP था लेकिन वो स्लैश पब्लिक फोल्डर में जा रहा था ना, अभी वो फोल्डर नहीं है यहाँ पे, वही तो है ना? करना। तो अगर मैं अभी ओपन करूँ इसको, अगेन इट इज़ गोइंग टू एंड अप इन एरर, एंड सिंस इट फिगर्ड आउट कि वो फोल्डर ही नहीं है, इट इज़ गिविंग यू दिस हेल्थ डिग्रेडेड, दिस एरर, ठीक है? तो यू हैव टू गो टू कॉन्फ़िगरेशन and from here if I go to modify option, and here I have to remove this thing and click apply. So in a minute this will be done. Okay, तो अगर हम कोई जैसे कि वेब डिप्लॉय कर रहे हैं तो उसके लिए जो डेटाबेस डिटेल्स जो दैट वी नीड टू प्रोवाइड इन आवर एप्लीकेशन। yeah, application will then connect, reading that file it will then connect to the database. ये जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, वेदर इट बी जावा या तो फिर एप्लीकेशन हाँ। में डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग देते हैं ना हम लोग। एप्लीकेशन का प्रॉपर्टीज होता है। यस, लेकिन ये कंपैरेटिवली बहुत इजी टूल है। मार्केट में जितने और भी ऑप्शंस है ना, मैंने एक दो ऑप्शंस देखे, एक GoDaddy का ऑप्शन देखा, एक ये यूज़ किया है एप्लीकेशन होस्ट करने में और डेटाबेस से कनेक्ट भी करने में। मेरे को GoDaddy में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वंस डन, इफ़ आई क्लिक दिस ना, इट्स वर्किंग, ठीक है ना? अभी मेरे को ये जो चल रहा है क्लोन 1 पे चल रहा है। I don't want this thing to run on clone 1. Now this is my production application. I want to take it on app 1. ठीक है, जो मेरी production URL है। तो करना कैसे? एक्शन में जाओ, यहाँ पे swap environment URLs है, ठीक है? अब ये जो क्लोन था ना, देखो एप्लीकेशन के दो एनवायरनमेंट है मेरे पास, एक क्लोन 1 है और एक न्यू ऐप 1 है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोन के ऊपर जो URL है क्लोन का, तो क्लोन 1 है, और न्यू ऐप 1 के ऊपर ऐप 1 है, राइट? यहाँ से स्वैप एनवायरनमेंट URLs है, तो एनवायरनमेंट नेम क्या है? क्लोन 1। क्लोन 1 वाले URL को मेरे को स्वैप करना है न्यू ऐप 1 से, ठीक है? क्योंकि सिंस दो ही एनवायरनमेंट है, दो से ज़्यादा एनवायरनमेंट है, तो हम लोग चूज़ कर सकते हैं कौन से एनवायरनमेंट को कहाँ पे स्वैप करना है, और सिंपली एक बटन है, स्वैप हो गया। डाउन होता है क्या उसमें? नहीं, कोई डाउन टाइम नहीं होगा। अगर ये रिफ़्रेश करूँ Ctrl F5, तो देखो क्लोन 1 ऐप 1 बन गया, और ऐप 1 वाला URL अगर एक न्यू टैब में ओपन करूँ, आ गया। तो ऐप 1 के साथ ये वेबसाइट है। और अगर मैं वापस पीछे जाऊँ, दूसरे एनवायरनमेंट में जाऊँ जहाँ पे क्लोन 1 का URL है, वहाँ पे वो लारावेल वाली वेबसाइट, Ctrl F5, आ गया लारावेल की वेबसाइट। और यहाँ पे ऐप 1 में जाऊँ, Ctrl F5, यही वेबसाइट चल रही है। ओके, क्लियर? सो बेसिकली ये जो एनवायरनमेंट URL स्वैप करना है ना, इट इज़ जस्ट the task is going to eat up just fractions of seconds, not even an entire second। सिर्फ URL तो स्वैप करना है, सिस्टम को कितना टाइम लगेगा इस चीज़ के लिए? तो ये पूरा समझ में है ना? अच्छा, URL स्वैप करना इतना ही नहीं होता है, लेकिन वो URL से रिलेटेड राउटिंग एंट्रीज वगैरह वो सब भी करनी होती है। तो कंप्यूटर्स ये चीज़ बहुत क्विकली कर लेते हैं, मतलब हम नोटिस भी नहीं करें उससे भी पहले ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है? बहुत सारे मॉनिटरिंग टूल्स थे, इसको ऑब्जर्व भी नहीं, मतलब नोटिस भी कर सके कि वहाँ पे डाउन टाइम आया था कुछ फ्रैक्शंस का, हार्डली एक आधा कनेक्शन, अगर वो भी यूज़र ने F5 हिट किया ना तो हो जाएगा, ठीक है? सेकंड अटेम्प्ट उस सिस्टम से चल जाएगा। तो ये कंसेप्ट पूरा समझ में है ना, हाउ दिस थिंग वर्क्स? तो पूरा इलास्टिक बिनस्टॉक का कंसेप्ट समझा ना? ओके, तो आप यहाँ पे सर्वर्स के साइजेस को चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर एप्लीकेशन एंड द नंबर ऑफ सेशंस, ठीक है, इनिशिएटेड विथ योर एप्लीकेशन। You can connect your application to the database. So your developers are going to put the database details in your application itself, and your application can talk to database, or your application can talk to backend servers. So when you set up a backend server, similarly you will also get the connection strings over there. तो वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करोगे अपने एप्लीकेशन में। और एक आखिरी चीज़, अभी सिंस ये मुंबई रीजन में मैंने बनाया ना, इफ़ आई गो टू EC2, इफ़ आई गो इनटू सर्विसेज एंड देन EC2, एंड इफ़ आई लुक इनटू माय इंस्टेंस ना, तो यहाँ दो इंस्टेंस चल रहे हैं, क्लोन 1 और न्यू ऐप 1। सो बेसिकली फ्रॉम हियर यू कैन लुक इनटू योर इंस्टेंसेस, बट द प्रॉब्लम हियर इज यू विल नॉट बी एबल टू लॉग इनटू योर इंस्टेंस, ठीक है? इफ़ आई सिलेक्ट वन ऑफ माय, शटडाउन हो सकता है क्या इधर से? हाँ, यहाँ से स्टॉप स्टार्ट कर सकते हैं आप, राइट? उसी के लिए ये दिया है। और मैं अगर स्क्रॉल करूँ ना, तो मेरी की पेयर इज़ एम्प्टी,
अमेजोन ने कुछ की पेयर कॉन्फ़िगर किया है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अगर मेरे को आफ्टर सम टाइम आई फील लाइक अमेजोन इलास्टिक बीनस्टॉक इज़ नॉट गुड इनफ to take care of my application, so what I can do, I can push in a key with the help of Amazon support, ठीक है, and then take control on this instance entirely. Then I'll be responsible for maintaining the platform and other things, ठीक है। तो पहले उसके पहले अगर आप प्राइमरी सर्वर प्रोडक्शन सर्वर्स के साथ ये कर रहे हो तो पहले क्लोन बनाओ, उसका क्लोन के साथ कर लो, क्लोन के लिए सपोर्ट ले लो। प्रोडक्शन को इतने जल्दी मूव मत करो फ्रॉम Amazon's जो प्लेटफॉर्म एज सर्विस टू इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर एवरीथिंग इज मैनेज बाय यू, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या क्या किया है क्लोन के अंदर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लोन बनाओ। लोड बैलेंसिंग भी कॉन्फ़िगरेशन में लोड बैलेंसिंग का भी ऑप्शन होता है। हाँ, लोड बैलेंसिंग का भी ऑप्शन है अगर आपके पास मल्टीपल सर्वर्स है, ठीक है, देन इन दैट केस यू कैन कॉन्फ़िगर लोड बैलेंसिंग। तो पहले लोड बैलेंसर चाहिए आपके पास और कॉन्फ़िगरेशन के वक्त सिंगल इंस्टेंस की जगह मल्टी इंस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। नहीं तो ये प्रोवाइड नहीं करता है क्या? इफ आई सेलेक्ट लोड बैलेंसिंग ऑप्शन हाँ, बीनस्टॉक में, तो बीनस्टॉक में लोड बैलेंसिंग नहीं, पहले लोड बैलेंसर बना के रखना है। बीनस्टॉक के थ्रू लोड बैलेंसर नहीं बना पाओगे, पहले आपको लोड बैलेंसर EC2 में आके बना के रखना है, फिर इलास्टिक बीनस्टॉक में जाके लोड बैलेंसर सेलेक्ट करना है और फिर वहाँ पे सिंगल इंस्टेंस की जगह मल्टीपल इंस्टेंस सेलेक्ट करना है। और नंबर ऑफ इंस्टेंस तब आप मेंशन कर सकते हो, 2 चाहिए या 3 चाहिए, कितनी रिडंडेंसी चाहिए, ओके। और फिर इंस्टेंस के साइजेस सिलेक्ट करने, सारे इंस्टेंस सेम साइज़ के मिलेंगे। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट की डिटेल आपको सिलेक्ट करनी होगी और इलास्टिक बीनस्टॉक के जरिए RDS भी आप लॉन्च कर सकते हो या तो फिर RDS में डेडिकेटेडली एक RDS इंस्टेंस आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ समझ में आई ना? URL नहीं पूरा ऐसे होता है ना, app1 में ऐसे होता हाँ, app1-asia-pacific-south.elasticbeanstalk.com इस तरीके का पूरा URL नेम आएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट पूरा समझ में है ना? कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स है इसमें? सर प्रोडक्शन बेस्ड एप्लीकेशन में यूज होता है? होता है। अभी मेरे पास एक मेरा स्टूडेंट है सारंग, ठीक है, ही इज़ वर्किंग, अभी उसका अगर मैं आपको बताऊँ ना, ही इज़ जस्ट अ फ्रेशर, इंजीनियरिंग करके जस्ट वो फ्रेशर था। ही स्टडीड AWS, ठीक है, एंड ही गॉट अ जॉब वेयर द कंपनी इज़ यूजिंग AWS टू होस्ट देयर एप्लीकेशंस। दिस इज़ अ डेवलपमेंट कंपनी, दे आर डेवलपिंग एप्लीकेशन फॉर देयर कस्टमर्स एंड दीज एप्लीकेशन, और बहुत बड़े स्केल की कंपनी नहीं है, छोटे स्केल की कंपनी है, एंड दीज एप्लीकेशंस आर लॉन्च्ड ऑन AWS, ठीक है। एंड फॉर मल्टीपल, अभी सोचो, फॉर मल्टीपल कस्टमर्स the websites, all the websites are launched from AWS, Elastic Beanstalk, ठीक है, and they are also using CI/CD pipeline with this, so you can have your CI/CD pipeline integrated right into Elastic Beanstalk in Amazon Web Services, right? So when you create and commit some code, so these codes are tested, first they are built, then tested, ठीक है, and then they are integrated or patched into Elastic Beanstalk using Jenkins and other tools. तो Jenkins also have an integration module to Elastic Beanstalk as well, ठीक है। जैसे Jenkins can integrate your code or go to Ansible to patch your code or make Ansible create an image of your code, ठीक है, for your Docker servers और Kubernetes के ज़रिए उसको rolling update provide करना, तो वो सब कुछ यहाँ से भी होता है। ये प्लेटफॉर्म में भी वो सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में है ना आपको? ओके, इसमें कोई क्वेश्चन? हाँ, लिमिटेशंस क्या है, मतलब कहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते? कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते? देखो, अगर आपको एक प्रोडक्शन साइज वेबसाइट फॉर बिजनेसेस सच एज फ्लिपकार्ट, ये ऐसी चीज़ें लॉन्च करना है जो ऑटो स्केलिंग डिमांड करने वाली, वहाँ पे लॉन्च नहीं कर पाएंगे। ऑटो स्केलिंग ऑप्शन नहीं है, लोड बैलेंसिंग का ऑप्शन है, लिमिटेशंस है यहाँ पे। अगर आप ऑटो स्केलिंग करने वाले हो, जो कि मैं आपको बताऊँगा उसका मीनिंग क्या होता है, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो ऑटो स्केलिंग के लिए आपको इन EC2 इंस्टेंसेस यूज़ करने हैं, ठीक है, समझ में। और दूसरी चीज़ इसमें जो है ना, जो आपका अपडेट टाइम है, जब आप एक न्यू एप्लीकेशन वर्जन लॉन्च करने वाले हो और आपको एनवायरनमेंट अपडेट करके चाहिए, तो जो एनवायरनमेंट को अपडेट वगैरह करना है ना, तो नेक्स्ट शेड्यूल मेंटेनेंस के टाइम पे ही होगा, ऐसा रैंडमली कभी नहीं होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम अमेजोन क्या करता है, न्यू वर्जन्स ऑफ एनवायरनमेंट जो जावा के थ्रू, जो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट मिल रहा है या तो फिर पाइथन के न्यू वर्जन्स हैं, वो अवेलेबल कराने में आफ्टर द रिलीज डेट थोड़ा टाइम लगा देता है, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर अस, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन न्यू प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, वो न्यू प्लेटफॉर्म की न्यू फीचर्स अपने आप में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है इलास्टिक बीनस्टॉक से। क्यों? क्योंकि अमेजोन इज़ नॉट सपोर्टिंग दैट न्यू प्लेटफॉर्म।
तो अगर हमारा कस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हम कभी भी कर सकते, कुछ भी कर सकते। तो इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ मॉडिफिकेशन, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपके एप्लीकेशन में, तो देन दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, यू विल गो फॉर योर EC2 इंस्टेंसेस। एनीवे प्राइसिंग भी इसकी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, जो सर्विसेज वो ऑफर कर रहे हैं और जो वो लोग प्राइसिंग दे रहे हैं, तो ये एक्सपेंसिव है। ओके ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? तो आई एम टर्निंग ऑफ दीज इंस्टेंसेस। नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, डॉकर। डॉकर के लिए न्यू वीडियो बनाओ कि इसी में रख दूँ, एक अलग वीडियो बनाता हूँ। ओके ठीक है, तो व्हाट विल डू, इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग इंस्टेंसेस फ्रॉम हियर, you will go to new app and will delete the environment. So this is my new application and action delete application. तो ये जो उसके environment है ना automatically delete होंगे, ठीक है। enter the name of application to delete my new app, Control C. So all of these things will be deleted including EC2 instances. EC2 instances को चेक करेंगे रिफ्रेश करके, तो इनका शटिंग डाउन स्टेट अभी स्टार्ट हो जाएगा। एक काम करता हूँ, एक एक एनवायरनमेंट पहले डिलीट करता हूँ। अच्छा चले गया वो कमांड यहाँ पे, ठीक है ना। तो वेटिंग फॉर EC2 इंस्टेंसेस टू टर्मिनेट, आ गया। ये जो हमने कॉन्फ़िगर किया था सब टर्मिनेट हो गया। यहाँ से ये न्यू एप्लीकेशन भी थोड़ी देर में चला जाएगा, ठीक है। ये एनवायरनमेंट टर्मिनेट हो गया, और इफ़ यू गो टू इलास्टिक बिनस्टॉक तो थोड़ी देर में एप्लीकेशन भी नहीं मिलेगा हमें। Control F5, सो ऑल थिंग्स आर डिलीटेड, क्लियर, फाइन। मैं इसको स्टॉप करता हूँ, डॉकर स्टार्ट करता हूँ।